Good morning everyone. In this video we will be dealing with the comparison of densities of three states of matter. Okay, I'll be reading line by line in the given PDF, and whatever the necessary topic I'll be just marking it out or will be highlighting it so that it can make your study easier. This is a new approach which I have tried. Hope you will like it, and please it's my humble request to kindly pay attention to each and every class that is provided by a teacher of almost all the subjects, I think, and keep on doing all your works in your fair copy. So first and foremost, what is the state of matter that we have already studied, that this matter is classified into three types. One is solid, other one is liquid, and the next one is gas. Okay, now how their densities differ from each other. How their densities differ means हम जानते हैं कि solid क्या होता है, ज़्यादा heavy होता है, वो ज़्यादा denser होता है, whereas gas क्या होता है, least होता है. ठीक है. Now how their densities differ from each other, that we will be discussing in this video. Okay, now in case of solid, the intermolecular spaces are very small. First and foremost, I'll be showing you with the help of this. Look at the figure. This is of solid. This is of solid. Okay, this is solid figure. And here look at the arrangement of molecules. Look at the arrangement of molecules in the solid. These molecules, each and every molecules are very tightly or closely packed to each other. Okay, they are very tightly attracted to each other such that हर एक molecules के बीच में जो space है वो minimum है, बहुत ही ज़्यादा कम है. ठीक है, means they are attracted to a very strong force which is known as intermolecular force of attraction. Is that clear? Okay. Now and intermolecular forces are very large. As I have already told you, since the molecules are very tightly packed, means molecules ने एक दूसरे को tightly क्यों packed है, क्योंकि वो बहुत strongly एक दूसरे को attract करके रखे हैं, which shows that उनके जो बीच में force है ये भी बहुत ज़्यादा है. So जो molecules हैं solid के are tightly पैक्ड इन अ स्मॉल वॉल्यूम. एक छोटे से वॉल्यूम में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आप फिट कर सकते हैं अगर आप उसको एडजस्ट, क्योंकि एक क्लास में अगर हम सारे बच्चों को एडजस्ट करना चाहें तो हम उनको बहुत ही क्लोजली पैक करेंगे ना, बहुत ही क्लोज एक दूसरे से रखेंगे, तो जिसके कारण क्या है, सॉलिड में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पैक हो सकते हैं छोटे से वॉल्यूम में भी. एंड वी नो कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन volume. What we know, density is equals to mass upon volume. This is the major formula that we need to remember. Now therefore the solids have high density. High density क्यों है? Because since the density is equals to mass upon volume, and we know since the density is equals to mass upon volume. Now see, density is equals to mass upon volume. Density का relation mass के साथ सीधा है and volume के साथ inverse है. Volume घटेगा because solid में एक छोटे से वॉल्यूम में आप ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को अरेंज कर सकते हो, बिकॉज टाइटली आपको अरेंज करना है. सो बिकॉज वॉल्यूम कम है तो अल्टीमेटली डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, और इस वजह से सॉलिड हैव अ हाई डेंसिटी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लिक्विड वन. इन केस ऑफ लिक्विड द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर समवॉट लार्ज. लिक्विड के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं समवॉट लार्ज. लार्ज तो है स्पेस. लेट अस just clear it out with the help of the figure. Now this is the figure of liquid. Now in this figure of liquid, just see at the figure, the molecules are arranged. Okay, so इनके बीच में जो space है ये ज़्यादा है. किसके comparison में ज़्यादा है? Solid के comparison में ज़्यादा है. But अगर हम इसको compare करते हैं गैस से, look at the figure of this gas. ये गैस का figure है. इस अगर स्पेस से लिक्विड के स्पेस को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि लिक्विड में स्पेस तो है लेकिन गैस से कम. गैस से कम मीन्स सबसे ज़्यादा स्पेस किस में है? गैस में, और सबसे कम स्पेस सॉलिड में. जहाँ स्पेस कम होगा मीन्स अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसीलिए स्पेस कम है, और जहाँ स्पेस ज़्यादा होगा अट्रैक्शन कम है. जहाँ स्पेस कम होगा अट्रैक्शन ज़्यादा है. ठीक है, तो लिक्विड के केस में स्पेस ज़्यादा है इसलिए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अट्रैक्टेड नहीं है. बट इन केस ऑफ सॉलिड सिंस द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज तो स्पेस कम है और अट्रैक्शन ज़्यादा है.
ना गैस के केस में लिक्विड का अगर हम कंपेयर करें, लिक्विड के केस में जो स्पेस है वो सॉलिड से तो ज़्यादा है पर गैस से कम है। और इसी तरीके से इसमें जो फोर्स है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगा है वो गैस से तो ज़्यादा है लेकिन लिक्विड से कम है। ओके, नाउ in case of liquid, the intermolecular spaces are somewhat large and intermolecular forces fairly small as compared to solid. So जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम दिया ही हुआ है लेकिन उस वॉल्यूम में भी बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं है जिस तरह सॉलिड के हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड की तरह तो उतने टाइटली पैक्ड तो नहीं है, इसलिए जो लिक्विड हैव लेसर डेंसिटी देन सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड की कम डेंसिटी होती है। Now let us come to the case of gas. I have already shown you the figure. In case of gas, the intermolecular spaces are 1000 times. The intermolecular spaces are 1000 times. That means intermolecular spaces are 1000 times. बहुत ज़्यादा space होता है in case of liquid. 1000 times or more than liquid. Sorry, in case of gas, the intermolecular spaces are 1000 times. Intermolecular space जो गैस में है वो सबसे ज़्यादा होता है। दिस इन टर्न, जिसके अगर स्पेस दो लोगों के बीच में अगर स्पेस ज़्यादा हो जाए तो उनके बीच की बॉन्ड वैसे ही कमज़ोर हो जाती है। सेम इन केस ऑफ मॉलिक्यूल गैस के केस में क्या है, उनके बीच में स्पेस ज़्यादा है इसलिए जो दोनों के बीच की बॉन्डिंग है वो समहाउ वीक हो चुकी है। और वीक क्यों हुई है, क्योंकि दोनों के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो नेग्लिजिबल है, हम ना के समान उसे लेते हैं। Now come to the third point line. The molecule of gas are free to move in any direction. The molecule of gas are free to move in any डायरेक्शन। ये फ्री हैं, ये कहीं भी आ जा सकते हैं मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ठीक है, आप गैस को बलून में रख दो तो वो बलून में रहेगा, फिर आप बलून को बर्स्ट कर दो तो वो गैस बाहर निकल जाएगी। जो गैस के केस में है उसका मॉलिक्यूल जो होता है ये बहुत फ्री होता है, ये किसी भी आप एक टाइटली पैक्ड कंटेनर में बहुत ज़्यादा तक आप क्लोज नहीं कर सकते हो, ये बहुत फ्री होते हैं तो ये किसी भी जगह उड़ सकते हैं। सो ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस, जहाँ भी इनको जगह मिलेगी ये वहाँ भी ऑक्यूपाई कर लेंगे स्पेस को। दस वी कैन से गैसेस हैव वेरी लार्ज वॉल्यूम। गैसेस के पास लार्ज वॉल्यूम क्यों है, बिकॉज न सी गैस ये इस कंटेनर में है तो अभी क्या है, वेट लेट मी शो यू एंड मार्क इट आउट। व्हेन द गैस इज़ इन दिस पर्टिकुलर कंटेनर, व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर सेट अप इन दिस पर्टिकुलर कंटेनर, ये इस कंटेनर में है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम कहीं से स्पेस कर दें, इतना खाली जगह कर दें तो ये मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, दे विल फ्लो आउट। ओके, एंड दे विल फ्लो आउट एंड समवेयर यहाँ आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, यहाँ आ जाएंगे, ये किसी भी जहाँ भी इनको जगह मिलेगी ये उसमें चले जाएंगे। देयरफॉर वी कैन से दैट न सिंस द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव आउट एवरीवेयर, सो वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से कि अब गैस के केस में स्पेस ज़्यादा है, दैट मीन्स अवेलेबल वॉल्यूम ज़्यादा है, और जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी अल्टीमेटली कम हो जाएगी। दस वी कैन से गैस हैव अ वेरी लार्ज वॉल्यूम, द लास्ट लाइन, एंड हेंस दे हैव वेरी लो डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। लिक्विड के केस में सॉलिड के केस से कंपेयर करें तो गैस में सबसे कम डेंसिटी होती है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा डेंसिटी, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहते हैं एक दूसरे से और उनमें फोर्स भी बहुत स्ट्रांग होता है। एक कम वॉल्यूम में भी आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर सकते हैं। मॉलिक्यूल कम होता है इसका, इसलिए आप कह सकते हो कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। लिक्विड के केस में लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से तो कम होती है बट गैस से ज़्यादा होती है। एंड इन केस ऑफ गैस, सिंस द मॉलिक्यूल्स आर वाइडली स्प्रेड हियर एंड देयर, दे कैन ऑक्यूपाई एनी स्पेस बिकॉज दे आर they are allowed to move freely in the space, therefore they have a large volume, and because of the large volume, since we know that density is inversely proportional to volume, and because of that large volume density gets lesser and lesser. Hope this video just makes you clear about the doubt. Okay, so in our next video we will be just discussing the exercise of this particular lesson which we have discussed. Okay, thank you.